हेलो स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 4 में लेक्चर नंबर 26 के अंदर ले लेते हैं जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये रैंडम वेरिएबल का ही पार्ट है। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है 2D रैंडम वेरिएबल्स। अभी अपने सबसे पहले हमने एक ही रैंडम वेरिएबल के रिलेटेड पढ़ा था केवल। इसमें दो रैंडम वेरिएबल एक साथ यूज़ होंगे, इसलिए इसे हम 2D रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं। क्योंकि दो रैंडम वेरिएबल यूज़ होते हैं इसलिए हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है इसे। The above idea are easily generalized to two or more random variables. We consider the typical case of two random variables that are either both discrete or both continuous. तो हो सकता है कि दोनों ही डिस्क्रीट हैं, दोनों ही कंटिन्यूस। उसी केस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। In cases where one variable is discrete and other is continuous, appropriate modifications are easily made. इसका यदि एक डिस्क्रीट है दूसरा कंटिन्यूस है, उसके अकॉर्डिंग हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसमें। जनरलाइजेशन टू मोर देन टू वेरिएबल्स कैन आल्सो बी मेड, और मोर देन टू वेरिएबल्स के लिए भी जनरलाइजेशन किया जा सकता है। सबसे पहले डिस्क्रीट केस। इफ x and y are two discrete random variables, we define the joint probability function of x and y p x equals to x, y equals to y equals to fxy, where fxy greater than equals to 0 and summation x summation y fxy equals to 1. The sum over all values of x and y is 1. इस तरह से डिस्क्रीट केस में यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लें इसमें, तो ये क्या आएगा, वो फंक्शन क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहलाता है यदि एफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और समेशन एक्स समेशन वाई एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1. सपोज दैट एक्स कैन एज्यूम एनी वन ऑफ एम वैल्यूज. सपोज एन एक्स ये एम वैल्यूज लेता है, x1 x2 xm, एंड y कैन एज्यूम एनी वन ऑफ एन वैल्यूज, और y लेता है n वैल्यूज y1 y2 up to yn. Then the probability of event that x equals to xj and y equals to yk is given by, तो probability at x equals to xj y equals to y given दी जाएगी p x equals to xj y equals to y equals to f xj yk. A joint probability function for x and y can be represented by joint probability table. तो joint probability function को एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, joint probability table कहते हैं इसे हम. The probability that x equals to xj obtained by adding all entries in the row corresponding xi and is given by p x equals to xj equals to f1 xj equals to summation k equals to 1 to n f xj yk. इस तरह से हम probability function for x के लिए निकालते हैं। इसके लिए टेबल इस तरह से बनती है, x और y दोनों के लिए यदि बनाए तो इस तरह से बनेगी टेबल। इसमें x और y दो रैंडम ले लिए हैं, x1 के लिए x1 x2 अप टू xm है, y के लिए y1 y2 अप टू yn। यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी टोटल लिखा हुआ है। यहाँ पे दोनों का दोनों का कंबाइंड यदि लेते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन तो f x1 y1 आएगा, देन x1 और y2 को लेते हैं तो f x1 y2 आएगा। इस तरह से f xn by x1 yn आएगा। उसको टोटल निकालें तो वो f1 x1 के इक्वल आता है। इस तरह से x2 x3 x4 की निकाल सकते हैं। नीचे टोटल में f2 y1 f1 y1 f2 y1 f2 y2 f2 yn इस तरह से आएंगी वैल्यू। For j equals to 1 to m, these indicated by the entries choose in the extreme right hand column or margin of table. Similarly, the probability that y equals to yk obtained by adding all entries in the column corresponding to yk given by p y equals to yk equals to f2 yk summation j equals to 1 to m f xj yk. इस तरह से probability function दिया जाएगा। इसमें probability होती है probability function. For k equals to 1 to n, these are indicated by entry total in the bottom row or margin of table because the probability 15, 16 are obtained from the margin of the table. We often refer to f1 xj, f2 yk or simply f1x, f2y as the marginal probability functions of x and y. तो इनको क्या कहते हैं, marginal probability function भी कहते हैं. It should also be noted that summation j equals to 1 to m f1 xj equals to summation k equals to 1 to n f2 yk equals to 1 होता है। इन सबका समेशन 1 के इक्वल आता है, which can be written summation j equals to 1 to n summation k equals to 1 to n f xj yk equals to 1. इसे हम जनरल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। This is simply the statement that the total probability of all entries is 1. ये सिंपल स्टेटमेंट क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है ऑल एंट्रीज की। द ग्रांड टोटल ऑफ 1 इज इंडिकेटेड बाय लोअर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो जो ग्रांड टोटल होता है 1 का वो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है कॉर्नर में टेबल के। द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई डिफाइंड बाय एफ एक्स वाई इक्वल्स टू पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स बाई
लेस देन इक्वल्स टू वाई को समीशन यू लेस देन इक्वल्स टू एक्स समीशन बाई बी लेस देन इक्वल्स टू वाई एफ यू। इस तरह से हम इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को। इन टेबल एफ एक्स वाई इज द सम ऑफ ऑल एंटिटीज फॉर विच एक्स जे लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड वाई के लेस देन इक्वल्स टू वाई। अब नाउ द कंटिन्यूअस केस। The case where both variables are continuous is obtained easily by analogy with the discrete case on replacing sums by integral। इसमें क्या होगा, कंटिन्यूस में जो सम ले तो वो इंटीग्रेशन से रिप्लेस हो जाता है। Thus the joint probability function for the random variable x and y, or as it is more commonly called the joint density function of x and y is defined by। तो joint डेंसिटी फंक्शन कंटिन्यूस केस के लिए क्या होता है, एफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डबल इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू 1। उसमें समेशन आता था, इसमें इंटीग्रेशन आएगा बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो क्या कहते हैं, इसे जॉइंट डेंसिटी फंक्शन कहते हैं एक्स और वाई के लिए। ग्राफिकली इफ जेड इक्वल्स टू एफ एक्स वाई रिप्रेजेंट द सरफेस कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी सरफेस। यदि हम जनरली फॉर्म में देखें, ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो जेड इक्वल्स टू एफ एक्स एक सरफेस को डिनोट करते हैं, इसे प्रोबेबिलिटी सरफेस कहते हैं। द टोटल वॉल्यूम बाउंडेड बाय दिस सरफेस, और जो टोटल वॉल्यूम इस बाउंड किया जाता है इस सरफेस से, एंड द एक्स वाई प्लेन इक्वल्स टू 1, जो कि एक्स वाई प्लेन में होता है वो इक्वल्स टू 1 होता है। इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टी 2 अबव द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी वाइल वाई लाइज बिटवीन कैडीज गिवन ग्राफिकली बाय द शेडेड वॉल्यूम। सिमिलरली गिवन पी यदि एक्स की वैल्यू ए से बी में, बाई की वैल्यू सी टे डी में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन एक्स ए टू बी इंटीग्रेशन बाई सी टू डी एफ एक्स बाई डी एक्स डी वाई। ये डबल हमने अभी जो किया है उसी का है, ये अपनी प्रोबेबिलिटी ए से बी या सी से डी में निकाल रहे हैं, उसमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इन दिस केस इज डिफाइंड बाय एफ एक्स वाई इक्वल्स टू पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू वाई इंटीग्रेशन यू इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू एक्स इंटीग्रेशन v इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू बाई एफ यू बी डी यू डी बी। तो इस तरह से एफ एक्स वाई कैपिटल एफ एक्स वाई से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का आता है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और इसमें कंडीशन होती है, हमें एफ एक्स वाई निकालना है तो सो एफ का हम कैपिटल एफ का 2 टाइम्स एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, स्मॉल एफ एक्स वाई आ जाता है हमारे पास। तो इस तरह से हम स्मॉल एफ एक्स वाई निकाल सकते हैं, इसका डबल डिफरेंशिएशन करके कैपिटल एफ का। द डेंसिटी फंक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। और यदि हमें उल्टा करना है कि हमें एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स वाई निकालना है तो इसका डबल इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स और वाई के रेस्पेक्ट। अब प्रोबेबिलिटी पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू एफ वन एक्स होता है, इंटीग्रेशन यू इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एंड इंटीग्रेशन बी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू बाय एफ यू बी डी यू डी बी। इस तरह से ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई भी कहते हैं इसको। इससे जो डेरिवेटिव निकलते हैं एक्स और वाई के वो क्या कहलाते हैं, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन कहलाते हैं या डेंसिटी फंक्शन भी कहते हैं। इस तरह से एफ वन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ एक्स बी डी बी एंड एफ टू वाई इक्वल्स टू यू इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू वाई एफ यू वाई डी यू इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव। जिस तरह से हमारे पास ये मार्जिनल डेंसिटी और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन निकल गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट independent random variable, which random variables are independent. Suppose that x and y are discrete random variables. If the event x equals to x, y equals to y are independent events for all x and y, then we say that x and y are independent random variables. In such case, p x equals to x, y equals to y equals to p x equals to y, p y equals to y. यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है पी एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल टू वाई वो अलग अलग प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई की इक्वल होती है। तो इक्विवेलेंट वी कैन से कैपिटल एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ वन एक्स इंटू एफ टू वाई। ये दोनों रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो अलग अलग एक्स और वाई के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। Where f1z, f1x and f2y are the marginal distribution function of x and y respectively. Conversely, x and y are independent random variable. इसके अलावा उल्टा दिख गए तो x और y random variable हैं for all x and y. Their joint distribution function capital X x y can be expressed as a product of function of x alone, a function of y alone. इस तरह से x alone और y alone के दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है कैपिटल एफ एक्स वाई। देन
If however f x y cannot be expressed, then x and y are independent. यदि एफ एक्स वाई इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते एक्स और वाई के इंडिपेंडेंट फॉर्म में फॉर कंटिन्यूस इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, इट इज आल्सो ट्रू दैट द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स वाई इज द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स अलोन एफ वन एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई अलोन एफ टू वाई, एंड दीज आर द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। इस तरह से हम कंटिन्यूस में भी होता है जैसे कि उसमें होता है डिस्क्रीट में। अब है चेंज ऑफ वेरिएबल, गिवन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of one and more random variables, we are often interested in finding distribution of other random variables. कई बार क्या होता है, हमें given probability distribution दे रखा होता है वन और मोर random variables का, और हम इंटरेस्टेड होते हैं फाइंड करने में distribution other random variables का, डिपेंड ऑन देम, जो उस पर डिपेंडेंट है इन सम स्पेसिफाइड मैनर, जो कि स्पेसिफाइड मैनर में है। Procedure for obtaining these distribution are presented in following theorems for the case of discrete and continuous variable. इसे डिफरेंट थ्योरम से दिया जाता है। सबसे पहले डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए, लेट एक्स बी ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हुज प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज एफ एक्स। सपोज दैट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैपिटल यू इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई यू इक्वल्स टू फाई एक्स वाई, वेयर टू ईच वैल्यू ऑफ एक्स there corresponds one and only one value of u, and conversely, so that x equals to phi u, then psi u, then the probability function u is given by gu equals to f phi u। निकला था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए। दूसरी थ्योरम में लेट x and y are discrete random variables having joint probability function f x y। Suppose that two discrete random variables u and y are defined in terms of x and y, y u equals to phi 1x, y and b equals to phi 2x y, where to each pair of values of x and y are correspond one and only one pair of values u and b, and conversely, so that x equals to phi 1 psi 1 ub and y equals to psi 2 ub, then the joint probability function of u and given by gub equals to f psi 1 up psi 2 ub। ये हो गया डिस्क्रीट के लिए। अब कंटिन्यूस केस के लिए आते हैं। Let x be a continuous random variable with probability density small fx. Let us define u equals to phi x, and where x equals to u, then the probability density of u is given by gu, where gu mod du equals to fx mod dx, or gu equals to fx mod dx upon du, f mod psi u or mod phi u। Next term है let x and y continuous random variable having joint density function fxy। Let us define u equals to phi 1 xy, b equals to phi 2 xy, where x equals to psi 1 ub, y equals to psi 2 ub, then the joint density function of u and b is given by gub, where gub mod du dv equals to fxy mod dx dy, and gub equals to fxy mod del xy upon del ub, or mod f mod psi 1 ub psi 2 ub, or mod j, then the probability distribution of function of random variables। इसकी इस तरह से कुछ थ्योरम्स हैं, तो इस तरह से हम इनको करते हैं। अब आते हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। वी ऑलरेडी नो पी ए ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जीरो। सपोज ए कोई यदि इवेंट है तो उसका प्रोबेबिलिटी निकल जाए तो पी हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जीरो होती है। तो पी बी अपॉन ए इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी कहलाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसे पता है हमें। इफ एक्स एंड वाई आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, वी हैव द इवेंट ए एक्स इक्वल्स टू एक्स, बी वाई इक्वल्स टू वाई, then p y equals to y upon x equals to f x y upon f 1 x। यदि इसका यूज़ किया जाए ऊपर से, where f x y equals to p x equals to x, y equals to y is the joint probability function, and f 1 x is the marginal probability function। f y upon x equals to f x y upon f 1 x, इसको हम f y upon x करेंगे। इस तरह से call it the conditional probability function of y given x। The conditional probability function of x given by is fx upon y equals to fxy upon f2y। We shall sometimes denote fxy and f by x by f1x by f2 by x respectively। These ideas are easily extended to case where x and y are continuous random variable। For example, conditional density function of y given x is f y upon x equals to fxy upon f1x, where fxy is the joint density function of x and y, and f1x is the marginal density of x। We can example find the probability of y being between c and d given x less than x plus x is generalized of these results are also available। तो इस तरह से ये 2D रैंडम वेरिएबल्स एंड जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है। इसमें जो हमने आज टॉपिक पढ़े हैं वो बता देते हैं क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं उसके अंदर।
सबसे पहले जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 2 रैंडम वेरिएबल यूज़ किया तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट केस में आते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं इसमें, एक तो होता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन को स्मॉल fx y से डिनोट करते हैं। ये कब कहलाता है, स्मॉल fx y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और समेशन x समेशन y fx y इक्वल टू 1, तब वो क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहलाता है, या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। नेक्स्ट इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है, px इक्वल टू xj, px इक्वल टू xj, y इक्वल टू yj इक्वल टू f xj y, की कहलाता है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इस तरह से हम निकालेंगे इसमें डिफरेंट जो हम टेबल बनाते हैं इनके लिए अलग अलग x और y के लिए, इस तरह से टेबल बनता है। इसके बाद हमने पढ़ा इसमें कि कंटिन्यूस केस के लिए पढ़ा, कंटिन्यूस केस में डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, वो एक दूसरे से कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्म में इनको लिखते हैं। इसका चेंज ऑफ वेरिएबल देखा, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल देखे हमने, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें आपके टॉपिक के हिसाब से। इसका हमने लिखा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से आज हमने ये टॉपिक पढ़े। ओके, नाउ एंड करते हैं इसका। थैंक यू।